in itself is not definite, not definite, जो definite नहीं है, अनिश्चित. Now the second one is definite. Definite means what is already fixed, what is already fixed, जो पहले से ही fixed है, यानी आपको वहां पर रूल चेंज नहीं करना है. और indefinite article में there is a variation, there is a difference, there is a difference. When we use the rule, जब हम रूल को यूज करते हैं तब हमारे पास वहां पर थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है. Now indefinite article, when we talk about indefinite article, it means or an, or an, you know, or an. And then when we talk of definite article, then the or and the और an indefinite article कहलाते हैं and the definite article कहता है. Now what are the rules? What are the rules? Rules क्या है? किस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं, किस प्रकार से हम अ का यूज करेंगे, किस प्रकार से एन का यूज करेंगे. इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहा गया, बिकॉज कभी अ का प्रयोग किया था, कभी एन का प्रयोग किया था, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती, कंफ्यूजन में हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अ लगाएंगे कि एन लगाएंगे. सो देयर इज अ सिंपल रूल, देयर इज अ सिंपल रूल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अ और हाउ टू यूज एन. वेरी सिंपल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ और एन, जब हम अ और एन का बात करते हैं तो सिंपली वी हैव टू जस्ट pronunciation, we should know the pronunciation of the word. Now there are 5 vowels in English grammar, there are 5 vowels in English grammar. English grammar में 5 vowels होते हैं, a e i o u. Repeat it, a e i o u. And the remaining letters are called consonants. And जो remaining letters हैं they are called consonant. Now when we say about a e i o u, a e i o u, when we talk, then in Hindi, in simple language, just okay, pay attention. When we say o a e u a I o au, these are the Hindi vowels, and the sound of these letters are o, a, e, u, a, I, o, au. तो ध्यान रखिए, इंग्लिश का कोई भी वर्ड यदि उसका साउंड हिंदी में अ से शुरू हो जाए, या बड़ी अ से शुरू हो जाए, या ई से, या फिर उ से, फिर ए आई से, या ओ औ से, तो आपको एन का प्रयोग कर देना है. किस चीज का प्रयोग करना है? एन, ए एन एन. हिंदी में कोई भी वर्ड हो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल. नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज ए, एंड ए इज वोवेल. ए इज अ वोवेल, एंड द साउंड ऑफ दिस ए इज ए. इन हिंदी दिस इज ए. Okay, then we will use an apple. Now another word is H O T E H. Now इसका उच्चारण कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए, नॉट होटल, होटल. अब ध्यान दीजिए, जरा गौर से देखिएगा, ये जो लेटर है ये वोवेल नहीं है भाई,
ये वोवेल नहीं है वोवेल? वोवेल है। ये क्या है? कंसोनेंट। कंसोनेंट, ये कंसोनेंट है। द लेटर H इज कंसोनेंट, प्योर कंसोनेंट, नॉट वोवेल। A, E, I, O, U, only 5 vowels and the remaining letters are called consonant. H is consonant, but the sound of this letter is hotel, not hotel. Wrong pronunciation. Hotel is wrong pronunciation. The right pronunciation is hotel. Then we will use here an hotel. Okay. The other word is hospital. Hospital. Now once again the letter is H and H is consonant, but the sound of this letter is ha. Ha is consonant. Ha is consonant. Then we will use A, hospital. Very good. Now once again we will repeat the other words. P-E-N, pen. Now the letter is P and P is consonant and the sound of this letter is pa. Then we will use a pen. Once again. O-R-A-N-G-E. Orange. Okay? Orange. The first letter of this word is O. Orange. Not orange. Orange. E wala. Orange. Orange means? Orange means santra. The first letter is vowel. The first letter is vowel. And the sound is in Hindi A. That's why we will use an orange. Once again. लेकिन जब आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी वर्ड्स A, E, I, O, U से शुरू होते हैं उनके आगे N का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अब हमको और डिटेल में पता लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कंसोनेंट होते हुए भी वो साउंड हिंदी के वोवल से शुरू कर देता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था होटल का HOTEL, ये कंसोनेंट है। हमने तो सीखा था प्राइमरी में, क्या सीखा था भाई कि A, E, I, O, U से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज और देखनी है, प्राइमरी में तो पढ़ लिया बट नाउ इन डिटेल हम उसको पढ़ रहे हैं। नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, अब आप 8th स्टैंडर्ड में, दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ हाउ टू यूज आर्टिकल, हाउ टू यूज आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, स्पेशली ए और एन। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ए और एन। तो कहीं पर ए आता है, कहीं पर एन आता है, तो एन कब लगाना, ए कब लगाना। हमको एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि हमको हिंदी का साउंड आ जाना चाहिए, बस साउंड ऑफ हिंदी वोवेल्स ऑफ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। इसका साउंड जिसको समझ में आ गया, ठीक है, तो उससे अगर हिंदी का जो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ है, उससे किसी भी वर्ड का अगर उच्चारण होता है तो उसके आगे आप क्या कर लेंगे, एन का प्रयोग कर लेंगे। होटल, तो एन होटल, इसी के साथ हमने हॉस्पिटल भी लिखा था। अब देखिए यहाँ पे UNION, देयर इज अनदर लेटर, देयर इज अनदर वर्ड, एक और शब्द हमारे पास है, यूनियन। नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज यू, और यू is a vowel, but the sound of this letter is ya. But the sound of this letter is ya, and ya in Hindi is consonant. Ya in Hindi is consonant. That's why we will not use then what will we use? A union. यस, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी देखना पड़ेगा।
ठीक है, वन सेकेंड, UMBRELLA, अम्ब्रेला. ओके, नाउ द सेकंड वर्ड इज अम्ब्रेला. देखो, यूनियन, द फर्स्ट लेटर इज U, अम्ब्रेला द फर्स्ट लेटर इज U. हियर U is a vowel. U is a vowel. And the sound of this U is A. In Hindi, A. Then we will use an umbrella. Difference? Yes, sir. There is a difference? Yes, sir. Okay? Yes, sir. हमारे पास दोनों लेटर U है. फर्स्ट लेटर क्या है? U. एक अम्ब्रेला है, एक यूनियन है. एक का उच्चारण या से कंसोनेंट हो रहा है, एक का उच्चारण अ से वोवल हो रहा है. तो जहां पर भी वो हिंदी के वोवल्स को लेके चलेगा, तो आपको थोड़ा सा हिंदी में भी चलना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है. इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ से हो रहा है, तो एन का प्रयोग कर देंगे. कोई भी है, कोई भी नाउन है, ठीक है ना. अम्ब्रेला इज अ नाउन, ठीक है ना. ऑल दीज वर्ड्स, वंस अगेन, सो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है, उसका प्रयोग हमें अच्छी तरह से आ गया है. हमारा ये यूज किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर डिपेंड करता है. अ एंड एन, यूज ऑफ अ एंड एन इज डिपेंड अपॉन साउंड, इज डिपेंड अपॉन साउंड. ओके, इज इट ओके? Yes, sir. Now we will talk of definite article. Now the name is definite article, and definite article is the. I have told you already so many rules of the. Yes, Hmm? Before the names of unique things. Before the names of unique. Before the names of unique. Now what are the unique things? Which are not made by man. Which are not made by man. Which are natural. Which are natural. Like sun, the sun. Moon, the moon. Earth, the earth. All these unique things. All these unique, rare things. Okay, before the names of unique things, we will use the. Then the second is before The name of holy book. the name of all holy books of the world. दुनिया की जितनी भी होली बुक्स है, होली बुक्स मीन्स पवित्र धार्मिक ग्रंथ, उनके आगे आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे. द थर्ड वन इज Newspaper and magazine. before the names of all types of newspaper and all types of magazines and all type of journals and all types of famous books. Famous big books, famous books. जितनी भी फेमस बुक्स हैं, जितने भी अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन हैं, उनसे पहले आप द का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, ये ऑल दीज आर द पंजाब केसरी, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ फेमस न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड. Okay, so before the names of newspapers, magazines and journals and all types of famous book in the world, the is used. Now the another is Unique building. now before the names of unique buildings. Unique buildings जितनी भी दुनिया में बहुत खास, रेयर, बहुत ही शानदार एक बिल्डिंग्स हैं, जस्ट लाइक ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, ठीक है ना. All these are the buildings. The Eiffel Tower, these are the very famous buildings of the world. Then that's why we will use the before their names. उनके नाम से पहले हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? Okay, next. Before the name of mountain, rivers, lakes and valleys. हाँ, very nice. Before the names of rivers, famous rivers. Before the names of rivers, जितनी भी नदियां हैं, उनकी नाम क्या है? जस्ट लाइक द गंगा. गंगा एक नदी का नाम है. द गंगा इज द होली रिवर ऑफ द हिंदूज. द गंगा इज द होली रिवर, ठीक है ना. होली में